Assalamu alaikum, my dear students. It is class 8th, subject social science. Today our topic is human resources. Human resources. प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो आपकी किताब जो ज्योग्राफी है, चैप्टर नंबर 6 है ये ह्यूमन रिसोर्सेज। हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज ये हमने पढ़ना है। My dear students, first of all, let's try to understand that what is a resource? What is a resource? After that, types of resources, and after that we have to understand human resources. First of all, what is a resource? What is a resource? I have already told you that resource, the thing which has its usability, utility, all the things are the resources, but some things which have more value, which have utility, these are more important resources. There are so many resources, but it has been classified mostly into natural resources, human resources, human-made resources. Human resources, human-made resources. What is a resource? Resource, you know, the utility or the usability is what makes an object a resource. A substance makes a resource. Utility or usability is what makes an object or a substance a resource. Value, the thing which has the value, economic value, which has some important value, we may call it as a resource. इन जिस चीज़ की यूजबिलिटी है वर्ल्ड में, जिस चीज़ की कीमत है ज़्यादा, जिस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानी जाती है, उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स कहते हैं। अब इसमें नेचुरल रिसोर्स इम्पॉर्टेंट वन, नेचुरल रिसोर्स। आफ्टर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज human resource. After that, one of the most important is man-made resource. Now, what are the natural resources? Natural resources, you know, those which have been gifted by the God, which has been from the which are already by nature in this universe, where there is no interference of the man in these resources. यानी जिन चीज़ों में, जिन रिसोर्सेज में इंसानों का कोई अमल दखल नहीं है, उन चीज़ों को बनाने में, उनको बिगाड़ने में नहीं, उनको बनाने में, उन चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि वाटर है, जैसे सनलाइट है, वाटर है, ऑक्सीजन है, एयर है। दीज आर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। आफ्टर दैट देयर इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में सबसे अहम जो चीज़ें आती हैं, टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, दैट इज द टेक्नोलॉजी विच हैज़ जिससे इंसानों की बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है टेक्नोलॉजी से। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स में रेल्स आते हैं, एरोप्लेन्स आते हैं, नेट, टुडे जो टेक्नोलॉजी नेट आता है, इसमें ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, गाड़ियाँ आती है, पुल्स आते हैं, रेल्स आते हैं, व्हीकल्स आते हैं, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है अपनी जगह। इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स, all the resources, among all resources, the most important resource, that is the human resources. Let us go towards the human resources. People are a nature's great resource. People are a nature's great resource. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. ये nations है. People are a nation's great resource. People are nation's great resource. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. हाँ, people जो है, जो लोग हैं, जो masses है, जो आवाम है, जो people है, this is the most important resource of a nation, of a country, most important resource.
of a country, of a resource, it is also most important nature. नेचर के लिए भी people जो है, आवाम जो है, लोग जो है, वो important resource है, because it is the only nature's bounty जो कुदरत का अतिया है, जो कुदरत का दिया हुआ है, इस यानी ये यूनिवर्स ये तभी यूजेबल है जब एक इंसान इसको यूज करता है, जब वो इंसान इसको अपने इस्तेमाल में लाता है, तब जाके हम इसको क्या कहेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, यानी सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल यूज फाइंड इट यूजफुल। जब लोग इसको यूजफुल मानेंगे, जब लोग इसको यूजफुल मानने के साथ साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, तब जाके ये यूजेबल माना जाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स है। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट इज people with their demands and abilities that turn them into resources। ये लोगों की काबिलियत है, इट इज लोगों की जो एबिलिटी है, स्किल है, हुनर है, फन है, यही इन चीज़ों को नेचर्स बंटी को किस चीज़ में तब्दील करता है, रिसोर्स में। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है, पीपल है। अब इस पीपल को नेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माने कि अब इनमें से सबसे अहम जो स्किल्ड पीपल है, जो बाज़ाबिता तौर एजुकेटेड पीपल है, हुनरमंद जो है, जो फनकार हैं, जो जानने वाले हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्स human resource is the ultimate resource। Healthy, educated and motivated people develop resource as per their requirements। हाँ, healthy people, educated people, skilled people, they make the resources जो resources है उनको ये healthy people, educated people और जो skilled people है, ये इन चीज़ों को क्या बनाते हैं, काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में सबसे जो मोस्ट एंड प्रीशियस एमंग द रिसोर्स इज ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे अहम रिसोर्स जो ह्यूमन रिसोर्सेज ही है। अब इनमें से वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है जो सबसे अहम है, जिनका इंटेलिजेंशिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनका माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिनके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास हुनर है, जिनके पास सबसे अहम और सबसे ज़्यादा जिसको क्या कहेंगे हम अहमियत है, उनको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एमंग द ह्यूमन रिसोर्सेज मानेंगे। अब the human resources are not equally distributed all over the world। they differ in their educational level, age, sex। अब एजुकेशनल लेवल के हिसाब से जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल है, ये डिफर है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इसी तरह जिस तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज है, इसी तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स